Hi guys, how are you all? This is me Shruti. So up till now we concluded two parts of financial market. Now this is the third one, and in this lesson we are going to complete the instrument of money market. आज हम लोग उसको conclude कर देंगे. Okay. तो up till now what we have learned, let's recapitulate. Okay. तो अब टिल नाउ हमने ये पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, and in money market we dealt instruments of money market. Okay, so let's revise. So what is financial market? Financial market is the market for lending and borrowing of funds, or money. Okay, financial market is basically of two types, that is money market and capital market. Money market for short term duration, capital market for long term duration. Okay, after that, in money market we dealt with instruments of money market. So in instrument of money market we started categorically. Okay, पहले हमने पढ़ा कि बैंक कैसे कैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड अपनी पूरी करती है. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट्स कैसे अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स पूरी करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल लर्न कि कैसे गवर्नमेंट borrows money using short term funds. Okay, so in bank we divided it into three categories. First, bank from RBI, उसके three methods: repo rate, bank rate, MSF. After that, bank to bank, call money, notice money, term money. ठीक. After that, bank from public using short term method, certificate of deposit. ठीक है. तो up till now हमने ये पढ़ा कि कैसे कैसे बैंक अपने बोरोइंग नीड्स को पूरी करती है यूजिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ कॉर्पोरेट्स यूजेस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो कॉर्पोरेट बस एक मेथड यूज करती है, दैट इज फ्रॉम पब्लिक. तो हाउ कॉर्पोरेट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक, दैट इज थ्रू commercial paper, and commercial paper is short term instrument. See, so let's learn about commercial paper. So commercial paper is unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. तो in this definition आपको दो नए नए टर्म पता चले होंगे. One sec. First is unsecured money market instrument and second is promissory note. What is unsecured instrument? See, एक होता है secured. Secured instrument are the instrument जहां we get collateral in return. Collateral कोई चीज हम गिरवी रखते हैं उसके बदले. ठीक है. And what is unsecured मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? जहां हमारे पास कोई भी चीज गिरवी में नहीं रहती है, बस एक पेपर है, उसके आधार पे हमने बोरोइंग कर लिया है. तो that's why it is unsecured money market instrument. That's why it is unsecured money market instrument. And promissory note means promise से बना हुआ है कि we promise कि I'll pay you this amount after this duration and I need money today and I'll pay you after after maturity is over. Okay, so that's why it is known as unsecured money market instrument. Okay, now तो अब फिर से हम इसके डिफिनेशन पे जाते हैं. कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट. इज दैट क्लियर? नाउ इसे कौन कौन इशू कर सकते हैं? कॉर्पोरेट, दैट इज कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज म्यूचुअल फंड, DFI. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इसके बारे में. दो डील्स विद फाइनेंसेस. ओके, नाउ it was first introduced in 1990. Commercial paper was first introduced in 1990. In certificate of deposit हमने पढ़ा था कि certificate of deposits are always issued in the multiple of 1 lakh and commercial paper are always issued in the multiple of 5 lakh.
5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, इस मल्टीपल में ही हमेशा कमर्शियल पेपर इशू होंगे. ओके, नाउ मैच्योरिटी कितनी होगी? 7 to 1 year, 7 days to 1 year, not more than 1 year because it is money market instrument, not less than 7 days. एक दिन के लिए चाहिए तो नहीं, 2 दिन के लिए चाहिए तो नहीं, मिनिमम 7 days. ओके, लेकिन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि क्या सारे कंपनीज, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं? द आंसर इज नो. Commercial paper are always issued by the company which has net worth of not less than 4 crore. जिनका net worth 4 करोड़ से कम होगा वो commercial paper issue नहीं कर सकते. They can't issue commercial paper. Always more than, अगर मान लीजिए 4 करोड़ समथिंग है तब वो इशू कर सकते हैं. बस कम नहीं होना चाहिए, 4 करोड़ नेटवर्थ से कभी कम नहीं होना चाहिए. ओके, अगर छोटा सा एक बिजनेस किसी ने एस्टैब्लिश किया है तो वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता. ठीक है, तो वी लास्टली वी डेल्ट अबाउट हाउ बैंक uses money market instrument. Now we dealt about how corporate uses money market instrument. Now the next is how government uses money market instrument for meeting their short term financial needs, short term borrowing needs. ठीक है, तो government is categorically divided into two method. government के भी दो मेथड को हमने डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट, गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम आरबीआई, जैसे बैंक आरबीआई से लोन लेती है, इन द सिमिलर वे गवर्नमेंट आल्सो बोरोज फ्रॉम आरबीआई. तो उसका मेथड वेज एंड मीन एडवांसेस. एंड सेकेंड इज हाउ गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक यूजिंग शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. उसके दो टाइप, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल. तो लेट्स फर्स्ट सी कि हम गवर्नमेंट आरबीआई से कैसे लोन लेती है. यहाँ देख रहे हैं आप, शक्तिकांता दास इज लेंडिंग मनी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. सो व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस? सी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस is the rate at which RBI lends money or government borrows money from RBI to tide over temporary mismatch in the cash flow. मान लीजिए गवर्नमेंट के कैश फ्लो में या लिक्विडिटी, गवर्नमेंट को कोई लिक्विडिटी क्रंच हो गई, तो वेज एंड मीन्स इज द मेथड गवर्नमेंट यूजेस टू बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. शॉर्ट टर्म पीरियड यहाँ क्या, 90 डेज. कितना, 90 डेज. एंड वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कि किस रेट पे, रेपो रेट. इफ यू रिमेंबर, आई एम रिमाइंडिंग यू, रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक, कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई. तो किस रेट पे गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से? रेपो रेट. उसी रेट पे जिस रेट पे बैंक बोरो करती है आरबीआई से. तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि वेज एंड मीन एडवांसेस का जो रेट है वो क्या है, रेपो रेट के बराबर है. ऑलवेज रेपो रेट एंड रेट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोथ आर इक्वल. ओके, नाउ ये this is the borrowing of government from RBI. Now government also borrows from public using two methods, treasury bill, cash management bill. अब we'll learn what is treasury bill. See, treasury bills are the short term instrument issued by the government. Treasury bills are short term instrument issued by the government. लेकिन क्या गवर्नमेंट खुद इसको
रिलीज करती है गवर्नमेंट खुद, क्या कोई चीज निकालती है कि आई नीड दिस मनी फॉर दैट पीरियड एंड इसकी मेच्योरिटी है? नो, आरबीआई इशूज ट्रेजरी बिल ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी खुद नहीं ये चीज निकालेगी कि आई नीड मनी एंड दिस, हमेशा किसके थ्रू वो डीलिंग होता है? आरबीआई के थ्रू। सी, इफ वी नीड अ प्लॉट, नीड अ प्लॉट मीन समवन नीड्स अ प्लॉट, तो वो कहाँ जाता है? ब्रोकर के पास या रियल एस्टेट बिजनेसमैन के पास, रियल एस्टेट के बिजनेस जो करते हैं उनके पास। तो इन द सेम वे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट किसके थ्रू आरबीआई इशू करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके, नाउ ट्रेजरी बिल कब स्टार्ट किया गया? 1917 में। इट मींस कि ट्रेजरी बिल इंडिपेंडेंस से पहले भी इशू हो रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ट्रेजरी बिल को इशू किया होगा। ओके, तो कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल was started in 1917. Minimum amount of treasury bill is 25,000. Minimum amount of treasury bill is always more than or equals to 25,000. ट्रेजरी बिल के मेच्योरिटी के 3 तरह के होते हैं मेच्योरिटी, 91 days, 182 days एंड 64 days. ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी इसके टाइप्स भी ये हो जाते हैं, जैसे वी कॉल इट 91 days ट्रेजरी बिल, we call it 182 days treasury bill and we call it 364 days treasury bill. ठीक है, तो ये इसके टाइप्स भी है, इनके मेच्योरिटी के बेसिस पे इनके टाइप्स को भी डिफाइन किया गया है, दैट इज 91 days treasury bill, 182 days treasury bill, 364 days treasury bill. तो मैंने बताया टू मेथड, ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल. नाउ विल मूव टू कैश मैनेजमेंट बिल. सी, कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. कैश मैनेजमेंट बिल is also short term instrument issued by the government. और कौन इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? आरबीआई. डीलिंग कौन करती है? आरबीआई. गवर्नमेंट को जब भी नीड होती है तो कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. इसकी भी मिनिमम अमाउंट 25,000, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेजरी बिल एंड cash management bill is of duration. The duration of cash management bill are always less than 91 days. हमने ट्रेजरी बिल में पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल are always issued for 91 days, 182 days and 364 days. What if government needs money for 3 months? What if government need money for 2 months? तो वो क्या करेगी? उसे पब्लिक से लेना है, तो government will issue cash management bill. Government will issue cash management bill. Basically इसको लाया ही गया है उस पर्पस को, उस वैक्यूम जो है ना उसको पूरा, उसके गैप को पूरा करने के लिए, कि 91 डेज से अगर हमें लेस के लिए चाहिए तो हम किस पे जाएंगे? कैश मैनेजमेंट बिल. तो इन दिस लेक्चर आई हैव कंक्लूडेड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. तो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे कॉमनली मैंने सबको डील कर लिया है. नाउ एक बार I'll recapitulate all the instruments. Let's recap. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक, the instrument which bank uses for short term borrowing from RBI, repo rate, bank rate, marginal standing facility, MSF. Okay. Second is from बैंक टू बैंक. मैंने कहा था फादर से नीड पूरी नहीं होती है तो कहाँ जाते हैं? फ्रेंड के पास. फ्रेंड टू फ्रेंड, बैंक टू बैंक, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी. थर्ड, बैंक फ्रॉम पब्लिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. आफ्टर दैट corporate uses commercial paper to borrow from public. Government uses ways and mean advances to borrow from RBI.
Government uses two methods to borrow from public: treasury bill, cash management bill. Treasury bill of three types: 91 days, 182 days, and 364 days. Cash management bill is always for less than 91 days. तो आई होप कि आपको आपका जो ये पूरा लेक्चर है वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसे मैंने कैटेगोरिकली डील किया है. नाउ इफ इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पे अपने क्वेरीज जरूर से जरूर भेजें. एंड थैंक यू फॉर द टुडे लेक्चर. Soon we will come with new topic. Money market instrument is over. I have concluded all. So thank you all. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy. Bye.